वहाँ पाकिस्तान का एक जगह तक पोस्ट है, इंडिया का एक जगह पोस्ट है, एंड देर इज नो मैन लैंड। सो वी वेर विड्रॉइंग आवर ट्रूप्स, पीछे 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 हम्म, पाकिस्तान आगे आगे आता रहा। जब गए, एक दिन नहीं आया, 2 दिन, फिर उनका जो कनेक्शन ये हो गया, एंड दे डिडंट कम फॉर फ्यू डेज। दैट इज व्हेन दी कोर गार्ड सेड कि इशू है, कुछ तो प्रॉब्लम है करके हम्म। जब ये गए उधर, दैट इज द टाइम ये रियलाइज कि भैया दिस इज नो टेररिस्ट, ये तो पूरे पाकिस्तानी आर्मी है यहाँ पर। जो भी नंबर है 200 300 या Hello, sir. Um, uh, my name is Anish, and I'll be your host this evening. Uh, Hello, friends. Welcome to another episode of Valor Diaries. This is a special Kargil edition, and today we have Lieutenant Commander Vijay Nair sir with us. Sir is not just an author, a TEDx speaker, a celebrated Indian Navy veteran, but he's an amazing human being. पिछले 1 सालों में we've been interacting with sir on numerous occasions, and sir has just been supportive and helpful, and we've had a pleasure of interacting with sir. Sir, thank you so much. आपने agree किया to do this. Welcome to a Valor Diary, sir. yeah, thanks Anish, first of all, to have me on the podcast, and to you and your team is doing amazing work, and I'm always amazed कि इतने सारे डिजाइन लाते कहाँ से हो, and his design is amazing. His design is amazing, and trust me, abhi a couple of weeks back I was in gym, you know so a lot of people know me there as a veteran, फौज Correct. का है करके, रनिंग वगैरह। So I was surprised that one of the instructor said कि सर मैंने 2 टी-शर्ट लिया है आफ्टर सीइंग योर दिस थिंग, और वो मुझे डिलीवरी नहीं मिला है। मैं बोला यार ऐसे कैसे नहीं हो सकता है, रुक करके मैं ना, तो बट देन नेक्स्ट डे इट केम, and he was so happy about the entire design and the product, so I feel so happy, and that's a compliment for you and Thank you so much, entire sir. team, These are entire the team. small motivations for us, sir. Sir, Very true, very true. वी ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट प्रोडक्ट्स जो आपके जैसे हीरोज का वैल्यूर पूरे देश के सामने दिखाए। हमारी फौज, हमारी फोर्सेस, दे शुड बी सेलिब्रेटेड, एंड फैशन में एक आउटलेट होना चाहिए कि लोग अपना इमोशन और अपना पैशन फैशन के जरिए दिखा सकें, एंड उसी के लिए एक हमारा फ्लैगशिप कलेक्शन है, कारगिल कलेक्शन। तो जैसे आपको पता है, दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग 25 years of victory over the Kargil war, which is a very major milestone because Kargil was an uphill battle इंडिया के लिए। एंड वन ऑफ द थीम्स जो हम कारगिल में एक्सप्लोर कर रहे हैं, विच इज अनकॉल्ड, जिसके बारे में हम सब इन थ्रू द पॉडकास्ट विल डिस्कस सर। बट बिफोर दैट विल स्पेंड 5 minutes ऑन अंडरस्टैंडिंग आपकी जर्नी सर। हम आज जहाँ पर हैं, हम कैसे पहुंचे यहाँ तक, कैसे शुरुआत करी सर, कैसा नेवी में कैसे ज्वाइन करा, कैसा एक्सपीरियंस था, जस्ट इफ यू कैन स्पेंड सम टाइम ऑन दिस टॉपिक सर। Sure, sure, Anish. So, like I come from Mumbai, born and brought up here. So I'm a Malayali, otherwise from a place called Koiland in Kerala, Calicut, Calicut district. हाँ जी। So yeah, so I am really proud of my both this thing, that I'm a more of a a Mumbaikar, and also I'm a Malayali and a Marathi Malayali. So many things combination, and फौज में जाके तो it's more like a cosmo. I speak so many languages and things like that. So yeah, growing up was not very hunky dory like many of the others. We had I was born in 76, so predominantly brought up in 80s and 90s. So things were not very fair in sense of, I'm from a very underprivileged background or whatever you call, but that's not an excuse, because life mein hamesha you have to see the continual improvement, and that's what I believed. And staying at a small place always, kept you going, that was the biggest motivation ki you have to do something, and that is how the journey began. My father, mother, like my parents, amazing parents, both of them stays with me right now, in the adjacent house which we have. So my two siblings, they are amazing, both of them, doing well. So growing up in a chawl in Mumbai, that is, a 150 square feet house, and uh, the purist may call it as slums, but that's our house. And it was beautiful. Uh, Things were not hunky dory because my father started his career as a taxi driver. Then he was an IT electrician later when he did.
and then he became a union leader, and then the typical Bengali, and as you sit in Calcutta and Keralite, communism खून में दौड़ता है, तो he also was for the workers where he used to work. उसके चलते a lot of union things, and most of the time police used to come home. So we grew in a very tough situation, and my uncle, I had two uncles in the sense they had come from Kerala, so amazing people, but they went into wrong way. So one of the uncles were a renowned gangster, other was also equally into that. So I grew up in a similar situation, and my first choice was always I was passionate to be a gangster, to be very frank. Wow. When I say that, I'm not exaggerating anything, because माहौल No, वैसे that's था. So mother, she took care of us. She knew that education is the only thing which will separate us from the rest. And she comes from a good family, a very educated family. Only because those days child marriage was prevalent. That's why she was good in studies, but unfortunate that she got married at the age of 14, and I was born when she was 16. ऐसे से मेरा चाइल्डहुड था. आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी नाइस स्कूल, बट वेरी स्मॉल स्कूल, इंग्लिश मीडियम रन बाय अ मलयाली ट्रस्ट. सो वहाँ पे इंग्लिश was not very strong, but yes, the early learnings from there, and military never happened. It was always to be in the wrong side. Gangster बनना था, बंदूकों से प्यार था. But the military happened only तो because बंदूक I. चलाई थी क्योंकि उस टाइम पे से नहीं बंदूक नहीं का नहीं, मैंने देखी थी मेरे घर देखिए। पे तो बहुत सारे हाँ हाँ। स्वॉर्ड, जो बॉम्बे के लैंग्वेज में बोलते हैं ना, सलिया, Correct. गुप्ती, कट्टा, ऑल दोस थिंग्स यूज्ड टू बी देयर. कट्टा वाज, आई Yes. हैड सीन गन्स एंड ऑल, चाचा के पास देखा था. And when he got killed, when he was killed by a rival gang, when he was 37 years old. So that was the changing moment. I I still remember a lot of press coming to home, Times of India से लेके सभी news channels थे आसपास, on how. So it was not on a good note which the channels came. नहीं तो channels आता है कोई achievement के लिए ना. Yeah, it was more for other reason. But saying that, he was amazing human being, helping nature, very close. I was very जो close to हम him. मूवीज में देखते हैं सर गैंगस्टर क्या असलियत में इज इट एज लाइक दैट कि मतलब हाउ इज Yeah, yeah, हाउ yeah. Yeah, so Mumbai of those days, 90s, I'm talking of 90s. So, जहाँ हम रहते थे, it was very common. Even if you Google today, it was a very notorious 3, 4 places in Bombay. Where Dawood Ibrahim come, that's called Dongri, a place. Then Arun Gowli comes, place called Baikala. And then there were areas like Mulund, Bhandup, Kanjurmarg. So I come from Bhandup. And those days कैसे ना हर छोटा आदमी भी भाई होता, भाई मतलब गुंडा, ये. So there would be local dons, local का local उसके ऊपर ऐसे. So बहुत स्कूल्स के आसपास, स्कूल्स ऑफ दोज डेज, स्कूल के बाहर होंगे गैंग्स, होंगे छोटे छोटे गैंग्स. So yeah, it was interesting, but I have seen many, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है. आई हैव सीन राइट्स, 92 के राइट्स देखे, बिकॉज हिंदू मुस्लिम राइट्स देखे. उसके पहले 84 में, जब आफ्टर इंदिरा गांधी असैसिनेशन, देयर वाज वन मोर राइट. आई वेगली रिमेम्बर, बिकॉज आई वाज दैट टाइम व्हाट, जो भी उम्र रहा होगा, बट आई वेगली रिमेम्बर 92 का राइट्स तो आई रिमेम्बर. सो इट वाज नॉट इजी. सी, द summary of entire thing was, it was not easy, life was not easy. But growing up, it was fun. And then the serial happened, Fauji happened. So I give full credit to media. Doordarshan used to be there, a channel. शाहरुख खान। Shah Rukh Khan, yeah. So even today, if you see the clip. So that यस। was the first thing when it sparked कि अच्छा फौज कुछ होता है करके. And then subsequently दूरदर्शन पे एक परमवीर चक्र बोल के सीरियल आता था, which showcased the valor of the army personnel. I don't remember any नेवी का किसी का कभी बताया होगा, बट आर्मी इट वाज मेजर सोमनाथ शर्मा, हवलदार अब्दुल हमीद. आई स्टिल रिमेम्बर ऑल दोस नेम्स जो परमवीर चक्र बताते थे. दैट समहाउ मोटिवेटेड, एंड दैट वाज द फर्स्ट थिंग. ट्रिगर बोलता है ना कि एवरीवन हैज दैट ट्रिगर पॉइंट लाइफ में. सो माय ट्रिगर पॉइंट वाज दैट, कि कैसे जाए करके. एंड देन द क्वेस्ट बिगेन कि हाउ टू जॉइन द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बिकॉज कोई बताने वाला नहीं था आसपास. करेक्ट। You'll be surprised, even today schools and colleges doesn't know. अभी तो मैं करेक्ट इतनी सर, जगह ये टॉक्स के लिए हम भी जाता हूँ. बहुत देखते हैं सर ये चीज मतलब। हाँ. So
वो टाइम पे अगर अवेयरनेस 5% होगा तो आज के इसमें 25% है. दैट इज द ओनली Very nice. डिफरेंस. Yes. And only thanks to media, social media, and brands like yours, where you are making people aware कि भैया forces होता है कुछ. And when people come, when I speak in a lot of colleges, and जब मैं बोलता हूँ ना तभी उनको लगता है अरे सर अच्छा ऐसा भी करियर है. हाँ. Then they connect to us, and it is a beautiful career. Yes, So मुझे definitely. मुझे भी स्कूल वगैरह में कॉलेज में कोई बताने वाला था. नाइदर nobody was there. And when it again, I always tell in all my interviews that I believe in a superpower. We may call it as Bhagwan, God, whomever, whichever religion. I always believe. So that intervention happened when one of my schoolmate ka chacha happened to be from Navy. अच्छा. And it was by pure coincidence उनको मिलने गया था, and he turned out to be a naval officer. That was the coincidence. अभी भी मैंने कोई तो रील में भी बताया था किसी नेवी आर्मी एयरफोर्स में पीपल जॉइन एज सोल्जर, हम्म. सेलर मैन, वो एयरमैन एंड ऑल. यार उनकी कोई गलती नहीं होती, उनको बताने वाला कोई नहीं था कि आने यार वाला कोई. आप ऑफिसर बन के भी जा सकते हो. यू कैन गो करेक्ट. थ्रू एनडीए एंट्री, यू कैन गो थ्रू सो मेनी एंट्रीज. सो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ अवेयरनेस. और मेरा लक था कि वो बंदा मिल गया, ऑफिसर था, उसने बोला कि यार इसी में जाओ, ऐसे ऐसे है करके. एंड देन दी प्रिपरेशन फॉर एनडीए एग्जाम्स. एंड तो उस समय तो इंटरनेट भी इतना प्रेवलेंट नहीं था कि लोग गूगल सर्च कर ले, मतलब इट नहीं, वाज. इंटरनेट तो था ही नहीं ना. था था ही ही नहीं. नहीं. There was no internet. I'm talking about 92, 92. 92, no internet. It हम्म. was there. हम्म. So it was only through word of mouth. फिर वो बंदे ने मुझे बोला कि you purchase a book called from Pathfinder Publication बोल के एक किताब है, तुम उससे पढ़ो. हाँ तो जी. अभी जो भी मुझे पूछता है तो मैं उनको वही बोलता हूँ, Pathfinder पढ़ो, Pathfinder से पढ़ो करके. And that journey was beautiful. So the shift from army से navy happened because I stay very close to a naval colony, a naval civilian colony. एंड वहां हम जाते थे क्रिकेट खेल. इनफैक्ट एज वी स्पीक टुडे मॉर्निंग आई हैड गॉन टू द कैंटीन इन दैट सेम अच्छा. कॉलोनी. दे हैव अ नेवल कैंटीन. क्या सो खरीदा वेरी. सर? आज क्या आज तो खरीद? दारू ही खरीदने जाता हूँ मैं, और कुछ नहीं. सो इट वाज वेरी नॉस्टैल्जिक एवरी टाइम आई ड्राइव थ्रू दैट रोड अंदर. इनफैक्ट आज ही फोटो भी बहुत प्यारी सी फोटो, सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस इज, लव टू सो सी सर, लव टू सी. सो ये आई डोंट नो वेदर यू कैन सी आई दिस. कैन सी, आई कैन सी सर. या ये अच्छा. जो ड्राइव है, इट हाँ इज हाँ. थ्रू दैट कॉलोनी. और जो भी दिखेगा अभी एक छोटा सा स्कूल आएगा, लाइक ऐसा तो. ब्लू ब्लू बोर्ड आया ऊपर, हाँ आई थिंक. हाँ, तो वहां पे हम लोग वो पानी भी नहीं भरते थे बचपन में. ओके. ट्रेसपास करके जाते थे इसके अंदर. फिर एक ग्राउंड आएगा, सो वी यूज्ड टू प्ले हाँ. ऑन दैट ग्राउंड. सो वेरी नॉस्टैल्जिक ऑल दोस थिंग. तो अभी भी जाना होता है वहां पर, बट अभी हाँ, हक से जाते. अक्सर So जाते हैं. when we were caught once, so there was this naval officer who came in a gypsy, and I was very mesmerized with that white uniform. And हाँ. that's how the shift happened from army to navy. And उसके बाद तो फिर एनडीए एग्जाम्स दिए. So I cleared NDA exams. I cleared the SSB also. But medically there was a condition. Arc was not matching that 6 by 6. अच्छा. ओके. So that dream somehow died because, and I never thought I will join the forces again. But that urge was very strong. For engineering, I went for my engineering, and then in the third year of engineering, there was this notice put on our notice board because our principal was a wing commander from Air Force, retired wing commander. So he ओके. was very, he had that thing of putting things on, हम्म. notice board. वहां हम्म. पे उसने शॉर्ट सर्विस टेक नेवी का डाला, एंड देन द रिक्वायरमेंट वाज मैचिंग. लास्ट 2 years में फर्स्ट क्लास चाहिए था, तब तक नहीं था फर्स्ट क्लास. ओके. I had 16 backlogs in engineering, so life was, not great, but this came as a big motivation. And then, last 4 semester I secured first class, and I wrote the, I went for the SSB interview. तभी रिटर्न एग्जाम नहीं होता था, डायरेक्टली मार्क के बेसिस पे. So since I had cleared once, I cleared again after engineering, and then medical हुई. क्वेश्चन सर फॉर अ व्यूअर्स जिनको नहीं पता है. सर अगर 6x6 विजन नहीं है सो दे आर नॉट एलिजिबल एनडीए क्लियर, एसएसबी क्लियर करने के बाद. Yes, इज इट ओनली yes. फॉर पायलट्स और इज इट फॉर एवरी? So every like फौज में भी, आर्मी ने भी, एयरफोर्स का एक एक स्टैंडर्ड होता है. अगर पायलट का होगा तो प्योर 6 by 6 होगा, एंड देर इज रिलैक्सेशन फॉर सम. करेक्ट. बट देन एंड ऑफ द डे जो भी करेक्शन होगा, इट हैज टू मैच 6 by 6. 6x6. ओके. करेक्शन करके. तो एनडीए के टाइम मुझे पता नहीं, दैट गाय डिडंट लिसन, ओनली बोला कि नहीं मैच नहीं हो रहा है करके, जस्ट. एंड द नेक्स्ट चांस दे गिव इज थ्रू टीआर. टीआर अप्लाई करो,
TR देके you have to go to command hospital. PR का फुल फॉर्म, आई एम सॉरी मैं That's लीड a क्वेश्चन। temporary rejection. It's called टेम्परेरी। temporary. Like medical में there would be many temporary rejection. आपका अच्छा। overweight हुआ तो you can 2 महीने में आप कम कर सकते हो. हाँ So जी। all those things. तो मेरा भी जो TR था आग का, उसने बोला कि doubtful है, so I'm giving you a TR. Go and ठीक है। apply at command medical hospital जहाँ डिटेल में होगा देखेंगे, तो हो ओके। सकता है कि आप क्लियर. 90% TR gets cleared. 90%. अच्छा। हाँ. वाह। हमारी दिक्कत वही थी ना कि दिल्ली जाना था, और हम्म। डैडी डैडी वाज काफी नाराज ओके। हो चुके थे. मैं मेडिकली आउट हुआ तो ना, ही वाज नॉट हाँ। एबल टू अंडरस्टैंड. बट देन दैट्स हाउ द चांस वेंट, सो आई कुडंट गो फॉर अपील. फिर जब इंजीनियरिंग के बाद सेम इशू आई, तो इट वाज अ बॉर्डर केस, आई ऑलवेज से. एंड दिस टाइम लक फेवर्ड मी. इट वाज अ एयरफोर्स ऑफिसर हु वाज देयर, अ विंग कमांडर, सर्जन विंग कमांडर. So it सर्जन was a border विंग। case. Yeah. And then I got medically cleared. And then जब merit आया, तो I was all India rank 4. वाह। तो जो तो अच्छे So के लिए होता है इसलिए कहते हैं। हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट रिग्रेट हमेशा है कि वो हाँ। एनडीए एंट्री मिस हो हाँ। गया, बिकॉज गोइंग थ्रू एनडीए वुड हैव बीन अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. शायद मैं आज फौज में भी होता, अच्छा। क्योंकि शॉर्ट परमानेंट सर्विस। कमीशन होता है ना, तो कमेंट नहीं होता। यहाँ शॉर्ट सर्विस कमीशन में यू हैव अ चॉइस 10 साल के बाद. वहाँ चॉइस नहीं होता. अगर इवन इफ यू डिडंट हैव लाइफ, 20 साल तो करके ही निकलना होता निकलने। है ना. तो सर तो शुरू नेवी में फर्स्ट कहाँ से चालू हुई जर्नी एंड तो हाउ वाज। या सो व्हेन जब आप नेवी ज्वाइन करते हो, तो यू ज्वाइन हाँ। एज अ कैडेट एंट्री. सो आई एम फ्रॉम द आईएनए, इंडियन नेवल एकेडमी. सो इंडियन नेवल एकेडमी दोज डेज यूज्ड टू बी इन गोवा, वेरेम करेक्ट। बोल के जगह पे. अभी तो यही मला में शिफ्ट हुआ लास्ट फ्यू इयर्स. सो या एकेडमी की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही. एकेडमी इज एकेडमी, वहां पे ट्रेन करते हैं आपको. सो व्हेन ट्रेनिंग इज अ वेरी स्मॉल वर्ड, बट इट्स अ बिग ह्यूज थिंग विच हैपेंस इन दैट ट्रेनिंग. So generally they say they make men and women out of boys and girls when you go there. And so when you pass out, it was a beautiful experience. पूरा सोल्जरिंग सीखी वहां पर, क्या क्या होता है करके ना, वेरियस वहां पे पहली कंडीशन. बार गन चलाया होगा आपने। हाँ, वहां पे गन चलाया तो वेरियस गन्स, एसएलआर से लेके सारा कार्बाइन चलाया. देन बाद में व्हेन एके एके मैंने बाद में चलाया व्हेन आई वाज इन अ यूनिट. एंड देन पिस्टल्स चलाए, काफी सारे वहीं पे गन ट्रेनिंग हुई. एंड कौन सी यूनिट पे आप फर्स्ट कमीशन हुए तो थे सर। या सो फिर मैं वहां से पासिंग आउट परेड होके, सो आई एम अ इंजीनियर, मतलब टेक्निकल ब्रांच का हूँ, तो आई एम फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल कैडर. माय इलेक्ट्रिकल। बेसिक इज इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल्स, सो आई एम फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल कैडर. एंड सो सो एकेडमी से पास आउट होने के बाद देर आर वायो कोर्स, यंग ऑफिसर्स कोर्स जिसको बोलते हैं. सो वी गो टू वेरियस यूनिट्स फॉर छोटे छोटे टाइम, और 1 महीने की शिफ्ट ट्रेनिंग होती है, 1 महीने की. ओके। And that is how I landed in this so-called war called Kargil war. ऐसे कुछ नहीं था कि सो आपको विच ईयर चुन डिड यू के. गेट कमीशन सर, व्हाट वाज दैट ईयर जिस साल आप कमीशन हुए थे। 1999, I was commissioned Okay. on 4th Jan 1999. What's- Yeah, that was the year when Kargil happened. And so फिर जब मैं वायो कोर्स कर रहा था, तो एक जहाज, जिस जहाज पर आया, सी अगेन लक. मेनी टाइम मुझे भी, टू बी वेरी हाँ। फ्रैंक, 2019 तक फौज 2009 में छोड़ दिए थे, 10 इयर्स. करेक्ट। उसके बाद करेक्ट। आई नेवर बॉदर्ड फौज के बारे में. ठीक है, हो गया, बिकॉज कोई, ठीक है, आई समझ वॉज गए। वेरी हैप्पी कि आई एम एन एक्स सर्विसमैन, और मेरा जो भी कार्ड था, कैंटीन कार्ड, लाइफ हम्म। वॉज गोइंग गुड. हम्म। एंड जहाँ मेरे मेडल्स भी थे, जो भी, हम्म। आई वॉज नेवर बॉदर्ड, एक डब्बे में बंद करके रख दिया था. हम्म। देन 2019 हैपेंड, लॉकडाउन हैपेंड, एंड देन कोविड, और बहुत सारा टाइम मिला. दैट इज हाउ व्हेन आई केम ऑन इंस्टाग्राम, समवन सेड कि सर आप इंस्टाग्राम पे आओ, यहाँ फौजी बहुत सारे यंगस्टर्स वांट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस. सो सम चैनल इनवाइटेड मी ऑन इंस्टाग्राम लाइव फर्स्ट टाइम. आई वाज नॉट नोइंग लाइव में भी करना क्या है. सो जर्नी वाज ब्यूटीफुल. एंड दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड. फिर मुझे याद आया, बोला यार ये हम भी तो पार्ट थे करके. सी कारगिल वॉर is always, when we speak about that, it is always related to army, more of करेक्ट। army, नहीं सर डेफिनेटली है सर ना. कारगिल वॉर में ऑपरेशन तलवार की जो अहमियत थी इट वाज पैरामाउंट एंड सर बिफोर वी डाइव इनटू दैट सर थोड़ा दो तीन स्टेप पीछे लेते हैं होलिस्टिकली सर इस बार लाइक 25 साल हो रहे हैं सर इस बार कारगिल को वी आर दिस इज 2024 इज 25th ईयर सिंस दैट बैटल. So what is your view on Kargil? Sir, it was an unprovoked war. It was an uncalled war. हम बैठे थे, हमने किसी को provoke नहीं किया. हमारे ट्रस्ट का फायदा उठाया गया.
सो व्हाट इज योर व्यू ऑफ व्हाई डिड कारगिल वॉर स्टार्ट? उस पे सर कुछ मिनट अगर हम स्पेंड करें। ओके, सो नहीं, ये बहुत जरूरी है. दिस अ वेरी क्वेश्चन विच यू आस्क्ड इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, एंड पीपल हैव टू अंडरस्टैंड. हमारे जो सी आई ऑलवेज से आर हिस्ट्री इज अ डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री. सब करेक्ट। लोग ने अपने कन्वीनियंस पे बनाया हिस्ट्री. बट वॉर्स आर वॉर्स. जब व्हाट्स 48 में पहली बार हुआ था पाकिस्तान, देन वी वेंट अहेड 62 चाइना वेयर वी हैड अ बिटर एक्सपीरियंस, 65 पाकिस्तान, 71 अगेन विद पाकिस्तान वेयर वी लिबरेटेड बांग्लादेश. देन दी वॉर कम्स 84 में मेघदूत हुआ था, जहाँ पे सियाचिन वाला जो, there we had one Paramveer Chakra, Bana Singh Sahab, who's still a legend. And then comes 1999, the Kargil War. और उसके बीच में बहुत सारे skirmishes, terrorist activities, और जो internal type, not a full-fledged one. So ये सारी चीजें हुई. तो 1999, and there was always, if you remember, 97, 98, जब मैं engineering से pass out हो रहा था, there was always a talk of why can't India and Pakistan sit and talk. बात करते हैं करके, they were talk of cricket team coming to India, and then बाला साहेब ठाकरे मुंबई में अपोज कर रहे थे, बहुत सारा कुछ चल रहा था. चीजें हो रही थी। सो इंडिया, एज इंडिया भारत, वी टुक अ चांस, बोला कि चलो ये बार हम दोस्ती करते हैं करके. एंड देन देयर वाज दिस फेमस लाहौर बस, अटल और बिहारी वाजपेयी, द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, वन ऑफ द मोस्ट कैरिस्मेटिक लीडर आप जिसको बोलो, he took that in. Lahore bus में, if you remember, Dilip Kumar, likes of many cricketers who went, many singer, actor, पब्लिसाइज्ड इट वाज, मतलब मीडिया स्पेक्टिकल था वो, लाइक। media, this thing. So यहाँ लाहौर पे जा रहे थे लोग, लाहौर बस, पूरा गले मिलना, बिरयानी खाना, all those things were happening. And what was happening at Kargil, the entire sort of द्रास बटाली को जो पूरा सेक्टर है, वहां पे क्या हो रहा था कि परवेज मुशर्रफ परवेज was मुशर्रफ। building up the army. हाँ। There is an unwritten treaty between India and Pakistan. So generally क्या होता है कि winters में it is harsh winter there, वेरी गुड। बहुत बर्फ ये हो क्या जाता है and टेम्परेचर all हो those things. जाती होगी सर वहाँ पे, मतलब -13? सॉरी। Correct. So there is a वहाँ पाकिस्तान का एक जगह तक पोस्ट है, इंडिया का एक जगह पोस्ट है, एंड देर इज नो मैन लैंड, समवेयर बजरंग पोस्ट एंड ऑल. सो विंटर में पाकिस्तान गो बैक, इंडिया कम बैक. दैट्स एन अनरिटन रूल, इतने साल से फॉलो हो रहा है. और हमने, आई एम कोटिंग फ्रॉम जनरल वीपी मलिक, ये नहीं कि जनरली। मैं कुछ बोल रहा हूँ मेरे इससे, नहीं. आई हैव रेड मल्टीपल दिस थिंग, आई हैव रिसर्च्ड, एंड जनरल वीपी मलिक का भी मैं, I had heard his many interviews. So this is from the horse's mouth, where he says कि हमारी intelligence fail हो गई, because we believed, we were focused more on the friendship aspect. So करेक्ट। somewhere our intelligence failed, जहाँ intelligence आना था नहीं आया. So we were withdrawing our troops, पीछे पीछे पीछे, पाकिस्तान आगे आगे आता रहा. You know, in spite of that brutal weather condition, they were building up. एंड ट्रूप्स ड्रेस्ड एज मुजाहिदीन्स। Yeah, troops dressed as mujahideen, but mujahideen के बॉडी लैंग्वेज से बहुत अलग था. इट वाज नॉट, जो चरवाहे जिन्होंने पहले देखा, दी शेपर्ड्स हु सॉ देम फर्स्ट, दे कुड आइडेंटिफाई कि दे आर नॉट द मुजाहिद, टेररिस्ट तो है ही नहीं करके, एंड दैट इज हाउ द फर्स्ट इनपुट केम. सी दोज डेज ड्रोन ये वो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था. जो इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस वाज थ्रू दिस पीपल, लोकल पीपल, they came running to the unit. I think 4 जाट था वहां पे. वहां पर they came running and said कि ऐसे ऐसे है, there is a built up of ये कुछ अलग ही लोग रखते हैं. तो हमारी जो वहां की यूनिट थी, तो जो भी whoever was the senior most there, he said कि ठीक है, we will find out क्या है करके. असर्ट Uh, पार्टियोस। that is how the first thing happened. The first thing, of just one sec. The first श्योर। thing is, they send, फिर 4 जाट का ये हो जाता है, तो वो सौरभ को बोलता है, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया. सो सौरभ इज, वी आर ऑल बैच इक्विवेलेंट, वी ओके। आर नॉट बैचमेट, बट वी आर बैच इक्विवेलेंट, बिकॉज एक ही सीनियोरिटी के, आर्मी नेवी एयरफोर्स, वी कॉल बैच इक्विवेलेंट. तो व्हाट 4 जाट की यूनिट ने क्या किया, बोला कि सौरभ को बोला कि यू गो एंड सी, देयर इज सम इन्फिल्ट्रेशन का ये. तो सौरभ अलोंग विथ इज 5 मेन, जो जनरली सारे पॉडकास्ट में आप सुनते होंगे कि ओनली पीपल स्पीक अबाउट सौरव एंड 5 मेन. सो दोज 5 मेन आर, सिपाही थे, अर्जुन राम. वन वाज अर्जुन हाँ राम, जी। अदर वाज भंवरलाल भगारिया, दो. देन थर्ड वाज भीका राम,
हम्म। Fourth was Mularam, and हम्म। last one was Naresh Singh. ठीक है. ओके। What happens is, in fact, मैंने भी बहुत सारे जब पॉडकास्ट किए तो we हाँ। always speak about Saurav, but हाँ। it is time that we should give You equal should give this thing recognition to to all the. the people. Yeah. So ये 5 लोग सौरभ के साथ ये लोग गए, 4 जाट के थे. एंड जब गए, एक दिन नहीं आया, 2 दिन, फिर उनका जो कनेक्शन ये हो गया. एंड दे डिडंट कम फॉर few days. दैट इज व्हेन दी 4 जाट सेड कि इशू है, कुछ तो प्रॉब्लम है करके. हम्म। एंड देन went the other unit of Captain Amit Bharadwaj and हवलदार राजवीर सिंह, और Okay. उनके साथ 31 people more, 31 people Okay. more. It Okay. was a big party It was a compared. big thing compared सर्च पार्टी बोल के, because Saurabh was reporting to Amit. अच्छा। ओके सर। Amit was his subaltern. हम्म। ठीक है. So अमित ने उसकी दीदी को लेटर भी लिखा था कि अभी तो मेरा एक बच्चा भी आ गया जूनियर, अब वो हम्म। मुझे सर सर बोलेगा करे. इज अ वेरी फेमस फेवरेट लेटर अमित का टू हिज दीदी. एंड देन जब अमित ये नहीं आया तो फिर अमित बोला कि मैं जाऊंगा करके, वो तो मेरा हाँ। बच्चा है करके, माई सब जूनियर. दैट इज हाउ ही एंड राजवीर सिंह साहब एंड अदर्स वेंट. जब ये गए उधर, सो दैट इज द टाइम ये रियलाइज कि भैया दिस इज नो टेररिस्ट, ये तो पूरे पाकिस्तानी आर्मी है यहाँ पर. जो भी नंबर है, 200 300 या जो भी था. इन्होंने मतलब उनको आईडीज तो उस टाइम नहीं देखी होंगी, बाय द विजुअल उन्होंने यस आइडेंटिफाई यस यस इक्विपमेंट्स यस. देखी है और। करेक्ट. हाँ। एंड वो पता चल जाता है ना कि एक आर्मी का जो बिहेवियर लहजा और होता एक है। मुजाहिदीन का बिहेवियर इज टोटली डिफरेंट. बट पाकिस्तान स्टिल मेंटेन टिल लास्ट कि वो मुजाहिदीन ही है, वो नहीं है करे, टिल दे वर एक्सपोज्ड. आई बिलीव से पाकिस्तान का तो इन लाइक देयर वाज अ नवाज शरीफ वाज नॉट इवन अवेयर। हाँ, तो दैट वाज सरप्राइजिंग. नवाज शरीफ से जब पूछा गया तो बोला था मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है करके. अच्छा। बट लेटर पीपल से कि इट वाज अ मिली भगत था करके, ही वाज तो टोल्ड टू उनकी कीप क्वाइट. जस्टिफिकेशन थी वही 1984 वाली कि इंडिया ने सियाचिन मतलब अब वो वही रिटोरिक वो अपने कंट्री में उन्होंने चलाया था। बट आई थिंक टुडे जब हम पाकिस्तानी मीडिया को अगर हम देखें, आई थिंक दे हैव एक्सेप्टेड अ फैक्ट दैट कारगिल वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स एंड बिगेस्ट थिंग जिनको जिसमें उनको ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान को शेम मिला था। एग्जैक्टली. इनफैक्ट आई वाज सीइंग दिस मूवी टुडे, फाइटर, हाँ जी। जो आया था मूवी, उसमें भी स्टार्टिंग में देयर इज दैट सेक्शन वेर इन जब देयर इज अ प्लान टू अटैक इंडिया. So there is the discussion between two of the Pakistan generals and one of those handlers हम्म। that 99 was a big failure and पूरी बदनामी हो गई थी हमारी हाँ और जी। दूसरे. हाँ जी। So yeah, so coming back to that, so जब अमित ने देखा तो Amit knew कि fighting all of them with this 29 30 people is impossible. तो अभी हम्म। एज अ ट्रू लीडर उसने क्या हम्म। किया, उसने बोला कि बाकी लोगों को बोला आप पीछे चले जाओ. इट्स फुलिश कि इतने लोगों के सामने ऐसे करके, बट क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है, हम्म। यू गो गेट दी सपोर्ट, पीछे जाओ, यूनिट से पूरा सपोर्ट लेके आ जाओ, तो मैं हाँ जी। मैं यहाँ देख लूंगा करके. हम्म। एंड अमित स्टूड अलोन. फिर हवलदार राजवीर साहब बोले कि ये साहब आपको कैसे मैं अकेला रहने दूंगा करके, आप मेरे हम्म। साहब है तो वाई विल हाँ। आई लिव यू अलोन. तो अमित वॉज प्लीडिंग विथ हिम कि साहब आपके 2 बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, मेरा कोई नहीं है करके, मेरे जो भी है, आई एम सिंगल, मेरा कुछ नहीं, आप चले जाइए, मैं संभाल लूंगा. बट राजवीर साहब ने बोला नहीं है, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ, द ट्रू हम्म। सोल्जर. एंड देन अमित हैज टू ऑर्डर हिम कि इट्स एन ऑफिसर्स ऑर्डर कि यू हैव टू गो बैक. तो राजवीर साहब बोले कि जो ऑर्डर है मैं नहीं मान रहा हूँ, आपको जो भी पनिशमेंट देना है ना, यूनिट चल के दे देना जब हम वापस जाएंगे करके. एंड आई एम डिसोबेइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम करके, वट एवर. सो दैट वॉज द कन्वर्जेशन विच इज नोटेड. Sir, एंड being on a terrain, on a mountainous terrain, which is very difficult. मतलब आई बिलीव सर लाइक अभी अभी तक हमने डिस्कवर नहीं करा था, राइट? व्हाट इज द मैग्नानिमिटी ऑफ द सिचुएशन? दिस इज एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. And then rest is history. They fought for, they killed 10 of them. They killed 10 Pakistani infiltrators, and in the bargain both of them got shot. Both of them fell in line of duty. And their the mortal remains were recovered after 57 days. After 57 days. Okay.
एंड बाय दैट टाइम सौरव का बॉडी, सौरव एंड बाकी के जो उनके द कलीग्स हु इनिशियल। वर देयर विद, जिसका भी मैंने नाम बचा, अर्जुन राम, भीखा राम, मोला राम, नरेश सिंह, ऑल दोस, इनके जब बॉडी मिले, इट वाज हॉरिबल। इवन टुडे इट पेन्स, जब मैं कोई भी पॉडकास्ट में बोलता हूँ, उनके देयर आईज वेर गॉज्ड आउट, all of them, eardrums were pierced with hot this thing rod, genitals were cut सबके, हड्डी सब, दांत भी सब तोड़ दिए थे, एंड पूरे बदन पे सिगरेट के बर्ड्स थे, उंगली तोड़ दिए थे, उंगली काट दिए थे, देयर वाज नथिंग टू बी वेरी फ्रैंक, and when they received, even today, senior Kalia sir is, even today he's fighting a case, even today, in the जिसको बोलते हैं ना ह्यूमन राइट कमीशन एंड वॉट एवर, आईसीजे जिसको बोलते हैं, वहां पे आज भी चल रहा है ये, कि वाई करके, because I had the privilege of interviewing senior Kalia sir long back, ओके so सर। when I was speaking to, so such was the brutality, such was the brutality, imagine the torture उन्होंने झेला होगा उतने दिनों, I mean, this is against Geneva Convention, सर अगर आप मतलब किसी को, सर एक फौज की एक डिसेंसी होनी चाहिए इन टर्म सोल्जर टू exactly, सोल्जर, मोर देन अबव एनीथिंग। exactly, exactly. And if you read, I was party to many of the blogs written by Pakistani officers later. मुझे काफी सारा मैंने blogs पढ़ा था, to some of the other articles. They also, in few of the blogs they wrote this was brutal, this was अच्छा, दिस इज inhuman. इंटरेस्टिंग, वी डिड नॉट नो दिस। अच्छा। Yeah. So there were some blogs which I had, I mean, few years back. Uh, and a blog was very interesting. See, end of the day, आप एक फौजी हो यार, है ना? If you are a Pakistani, I respect you because you are fighting for your country. हम हिंदुस्तानी है, we fight for our country. सोल्जरिंग सोल्जरिंग तक ठीक है, एंड देयर इज कन्वेंशंस जिसमें अगर मैं मुझे आपने पकड़ लिया तो बिहेव लाइक अ सोल्जर rather than this. सो मेनी पाकिस्तानी ब्लॉगर्स, ऑफिसर ब्लॉगर्स जो है, उन्होंने लिखा भी है दिस वाज ब्रूटल करके, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, एंड उन्होंने ये भी लिखा है कि वाई दे रेस्पेक्ट द इंडियन आर्म फोर्सेस, बिकॉज व्हेन वन ऑफ द मेजर पाकिस्तानी मेजर का ब्लॉग पढ़ा था, उसने लिखा कि व्हेन पाकिस्तानी सोल्जर्स वे किल्ड यहाँ पे, ही सेड कि मुझे मेरे लोगों का मॉर्टल रिमेन्स वापस चाहिए, एंड देन ही वाज नॉट अलाउड वहां से, तो ही ब्रेस्ट दैट ऑर्डर, बोला कि कुछ भी हो मैं लेके ही आऊंगा करके, फिर उन्होंने वो एक बड़ा फेमस वीडियो है, व्हाइट फ्लैग दिखाया, हाँ एंड हाँ। देन द इंडियन आर्मी दिस, लेना एंड में। देन हाँ। प्रॉपर फ्यूनरल वाज गिवन, दैट वाज दैट मेजर जिसका मैंने ब्लॉग पढ़ा था, एंड later he was, for that he had to, he had a tough time, ना ये पाक। प्रमोशन ना कुछ, या दैट पर्टिकुलर ऑफिसर, जो पाकिस्तानी ऑफिसर था, तो ऐसे काफी सारे ब्लॉग्स में उन्होंने बोला है कि दैट टाइम जो इंडियन आर्म फोर्सेस के, इंडियन आर्मी वाले, वन ऑफ द ब्लॉग्स ही रोट दैट पाकिस्तानी मेजर हैड रिटन दिस गाइज वेर मैड, इनके ऊपर कुछ तो आ गया था करके, बिकॉज क्लाइंबिंग दैट हाइट, नीचे से ऊपर चढ़ना इज इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट, जो भी, बिकॉज आप लोग ऊपर बैठे हो, यू आर, आप वहां से शेलिंग कर रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो, बड़े बड़े पत्थर को ये कर रहे हो, स्टिल देर आर पीपल लेड बाय 23 एंड 24 years old, मोटिवेट करके आप उसको ऊपर लेके जाके, एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वन द वॉर आल्सो, आफ्टर 547 वी लॉस्ट 547 soldiers and then thousands injured, but still we won. So वो लोग भी वही बोलते हैं कि यार ये सिर्फ जिगरा, it is a matter of जिगरा, because we never had proper, वहाँ का जो विंटर क्लोथिंग नहीं था, इवन द इक्विपमेंट्स जो थे साथ में, वेपनरीज भी थे, दैट वाज आल्सो नॉट अप टू मार्क, सो मेनी थिंग्स, इवन, सो आई एम कोटिंग जनरल मलिक फ्रॉम ऑल दिस, बिकॉज ही वाज द पर्सन हु वाज देयर। एक बहुत प्यारा सा चीज उन्होंने कहा, विच he said when they got Saurav back, when we got Saurav back, so General VP Malik convinced the politics, politicians जो थे, जो भी तभी के defense minister, and Atal Bihari Vajpayee ji just gave a go ahead, and then there is a very famous speech of his कि हम शांति प्रिय देश है, and ऐसे करके, और then General Malik, VP Malik said, जब उनसे ये हुआ था तभी a joint statement was there saying that कि पहली गोली तुमने चलाई है, आखिरी गोली कब चलेगी या कब रुकेगी वो हम डिसाइड करेंगे, सो दैट स्टेटमेंट बिकेम द जोश
line for the entire armed forces, and that is how we went into war, you know. सर And दिस इज द एग्जैक्ट थीम जिस पे हम इस बार काम कर रहे हैं, विच इज अनकॉल्ड. सर, डाइवर्टिंग द फोकस टू इन द इंडियन नेवी पर से, एंड उनका रोल ऑपरेशन तलवार, विच आई बिलीव वाज हेडेड बाय एडमिरल सुशील कुमार एट दैट पॉइंट. सर, आई बिलीव नेवी ने उस टाइम बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया था correct, इन इन ऑल द मेजर ट्रेड राउट्स, जिनसे पाकिस्तान को ऑलमोस्ट टाफ, पाकिस्तान आई थिंक 6 डेज के रिजर्व पे था in correct. terms of depleting all their oil reserves. And True. I believe that पाकिस्तान was at a point जब उनको ये डर लगा था कि अगर अब हम नहीं बैकआउट करेंगे हमारी तो देश ही खत्म हो जाएगी, बिकॉज द होल कराची बॉर्डर वाज ब्लॉक, मतलब द होल द नॉर्थ अरेबियन जो पूरा सी का जो बेल्ट है, एंड यू वर देयर लाइव ऑन दैट एक्शन सर. सो एंड नो बेटर पर्सन टू हियर अबाउट दैट सर. आपने जनवरी 1999 में यू गॉट commissioned, and the first आपकी जो first operation. So I believe sir, हम बहुत फौजी से बात करते हैं. We've had the honor of connecting with a lot of army people, and हमें ये कहा जाता है अगर it is very few who have the honor of serving the country in such a position, and you are a person जिनको ज्वाइन करते ही वो मौका मिला. इसलिए मैं बोलता हूँ सर, जो आपने जो जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है. सो सर, वी वांट टू नो द इनसाइड ऑफ अ सोल्जर. कैसी थी छोटी छोटी चीजें, क्या हो रही थी आप लोग को फर्स्ट, आपको फर्स्ट खबर कैसे मिला वॉर के बारे में? हाउ डिड द सोल्जर्स रिएक्ट? हाउ डिड योर colleagues really react in the navy sir? How was our viewers would love to understand a personal experience जो आपने देखा Yeah. सर. So, just to give you an insight, when Kargil war happened, जब ministry में, when all the three chiefs were called, and हम्म. political know-hows were there, all of them. So when they were discussing, so General VP Malik से लेके Admiral Sushil Kumar, I think Air Marshal was Tipnis, Yes. AY Tipnis Yes. sir was the Air Marshal. So ये जब तीनों ने जब when the briefing was going on, and the Indian Armed Forces के ये लोग, they were adamant कि कुछ करना है. Surprisingly, Admiral Sushil Kumar was the first one to give full support. बोला कि Navy is ready, Navy is ready. We want to see 65. If you see Yes. 65 में uh, Navy was given a secondary role, and the naval chief जब जो भी थे, he was pleading कि give us chance. नहीं दिया, you know they were kept aside, and only place where they could do something was very not even mentioned anywhere. And हम्म. then Pakistan claimed in 65 कि उन्होंने नेवी के यूनिट पे बॉम्ब डाल दिया. And later there was a humorous reply to that, saying that एक उन्होंने जो बॉम्बिंग किया उसमें सिर्फ एक कुत्ता मरा था करके वहां पर, so that. Then 65 के बाद, I'm just giving you a perspective before this, तो सर, वी वुड 99. लव टू नो अ पर्सपेक्टिव, Yeah. एंड अगर हम 71 के बारे तो में, 70 वुड लव टू नो 65 के मोर. 65 के बाद नेवी वाज वेरी डिजेक्टेड. नेवी के जो लीडरशिप थे बोला कि वी वर प्लीडिंग टू गिव अस अ चांस. एंड देन द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. तो देन दी जो भी नेवल चीफ सेड, अगर हमें ऐसे फिर से मौका मिले, नो वी विल बर्न कराची इन एंड आउट करके. दिस वाज ए स्टेटमेंट पोस्ट 65. सो सो पावरफुल, मतलब इट गिव्स That अस is, कॉन्फिडेंस. imagine the visualization which he would have had. And it was not a mere statement, he would have seen the backup which he would have created Navy over the years. And 71, when war broke out, 71 is a very interesting war. Again, very few people know, Navy का active role सबको मालूम है, कराची जाके जला दिया. But there was a covert operation. There was a covert operation. And it is, I'm quoting from a book called Operation X by Sandeep Unnithan and Captain Samant. Captain Samant was the person who was there. So Navy का, imagine 71 में war हुआ, 69-70 में ही नेवी को मालूम था कि क्या करना है. दे विल बी अ सिचुएशन, एंड उन्होंने क्या किया, मुक्ति बाहिनी, जो बांग्ला लिबरेसी. 71 वॉर क्यों हुआ? बिकॉज पाकिस्तान वॉज ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान. जो भी वेस्ट was more of a Urdu population, and this was more of a Bengali speaking this thing. And they wanted to implicate everything what is followed in West Pakistan on East Pakistan. So it didn't work out. There was a strong, opposition led by Mujibur Rahman.
जो उनकी पार्टी थी, एंड इन दैट इलेक्शन, जब इलेक्शन हुआ तो मुजीबुर रहमान का पार्टी वन दैट। ओके, बट उन्होंने वहां पे पाकिस्तानी हुकूमत जो थी, दे डिसरिगार्डेड दैट इलेक्शन, एंड देन दे स्टार्टेड अ हॉरेंडियस थिंग, मारना काटना, बच्चों को जलाना, रेप, women were raped on the road, so many people were killed, which is very very prominent. And then comes the Mukti Bahini, Mukti Jodha जिसको बोलते हैं। Indian Navy started training this Mukti Bahinis from 1970s। वॉर होने के एक साल पहले से इनको मालूम था कि सी बांग्लादेश इज अ रिवराइन कंट्री, बाय द नेटवर्क ऑफ रिवर। और करेक्ट। पाकिस्तान के बहुत बोट्स और छोटे छोटे शिप्स वहां पे थे, मर्चेंट वेसल्स थे, लॉट ऑफ ट्रेडिंग यूज टू हैपन, एंड बाहर के भी काफी शिप्स आते थे बिकॉज ट्रेडिंग यूज टू हैपन। करेक्ट। तो इंडियन नेवी had a covert operation. There was a team, very, very secretive team, very secretive team. Naval headquarters में सिर्फ वो टीम को ही मालूम था, you know. अच्छा। And interestingly, all were Bangla speaking officers. See the vision, see the vision. जो टीम होगा वो टीम, और वो टीम होगा तो सारे बांग्ला स्पीकिंग ऑफिसर होंगे, जो स्ट्रेटेजी में है। बाकी का जैसे ठीक है, लेटर कैप्टन सामंत एंड लेफ्टिनेंट कपिला, ऐसे बहुत लोग थे, देन लेफ्टिनेंट दास वाज देयर एंड काफी लोग, यू नो। सो इनका काम ये था कि दे वांटेड टू फॉर्म अ टीम ऑफ नेवल डाइवर्स। तभी ओके। मरीन कमांडोज बनी नहीं थी, अच्छा, मरीन मार्कोस नहीं था उस टाइम। हाँ, मार्कोस नहीं था, बिकॉज मार्कोस बाद में बना। तो नेवी के जो डाइवर्स थे, सो दे, जो सीडीओ नेवी में, एक तो शिप ड्यूटी ड्राइवर होते हैं, डाइवर्स हाँ। होते हैं एसडी, और एक तो सीडी होता है, राइट, जो जिसको हम क्लियरेंस डाइवर्स इस बोलते हैं। टाइम हाँ जी। तो दे आर एज गुड एज मार्कोस, यू नो। तभी तभी when Marcos were not, so इनका एक यूनिट बनाया, and the motto, very few people in the navy knew, only chief of naval staff and few people, and this people established, पहले यमुना के आसपास उन्होंने एक बेस बनाया, and they started training this बांग्ला, जो अंदर आ गए थे ना लड़के, refugee types, they handpicked few people, some 100 people who were young between 16 to 23 के, who were physically fit, गुड एट स्विमिंग। तो इन्होंने वो कैंप लगाना चालू किया वहां पर यमुना के पास। बट दे रियलाइज कि ना, ये किसी को पता चल जाएगा कि इंडिया इज डूइंग दिस, सो इट वुड बी बिग, इंटरनेशनल क्राइम, पूरा हंगामा हो जाएगा करके। ऐसे 71 में आर्मी, इंदिरा गांधी, एंड वी वुड हैव सीन इन द मूवी करेक्ट। मैनेक शाह, यस सैम यस। सैम वाली मूवी में। तो इन्होंने क्या किया, बोला यार ये थोड़ा ट्रिकी है, लेट्स मूव दिस बेस टुवर्ड्स द बॉर्डर, यानी बांग्ला बॉर्डर पे, ईस्टर्न साइड पे। अच्छा। एंड वहां पर ये जो ऑफिसर्स थे और मेन थे, we got late and all. Chaman Lal Saab the, Chiman Lal Saab. He got Mahavir Chakra. So few officers and few sailors of the navy, they were tasked to train these people. ओके। ठीक है। और ये लोग वाइट्स वगैरह कुछ पहनते नहीं थे, ये लोग भी लुंगी बनियान बांग्लादेशियों जैसे ना, प्रॉपर उनके जैसे, 2-2 महीने में एक एक बैच को ट्रेन करके, दे यूज टू ट्रेन देम ऑन अंडर वाटर स्विमिंग, कैसे बच के आना, लिम्पेट माइन कैसे लगाना। देयर वाज अ लिम्पेट माइन, जो जहाज अच्छा। के नीचे जाके लगा दो, आधा घंटे में इट विल ब्लास्ट, यू नो। okay, द मोमेंट दैट एक प्लग होता है उसका, दैट प्लग व्हेन इट इज एक्सपोज टू वाटर, 30 मिनट्स में वो ये हो जाएगा करके। तो दैट ओके। इज हाउ दे ट्रेन एटलीस्ट 4 बैचेस ऑफ बांग्ला मुक्ति बाहिनीज। ओके, एंड दैट इज 70 से ट्रेन करते आ रहे हैं। जब वॉर ब्रोकआउट होने के पहले, जब वॉर का चालू हुआ, बाय दैट टाइम ऑल दिस पीपल वे रेडी, और ये लोग जा जाके वहां पे, यू नो। सर वन क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये जो कवर्ट ऑपरेशंस होते हैं पॉलिटिकल चैनल में, इज द प्राइम मिनिस्टर और द डिफेंस या मिनिस्टर और से अवेयर? yes, only few of the few, you know, maybe Indira Gandhi would have been aware, or many, very few, handful जिसको बोलते हैं, जैसे उरी हुआ था, हाँ only जी। few people, because नहीं, और किसी को बता भी नहीं सकते आज के टाइम में। तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट इवन टू कंटेन दैट, यू नो, विथ ऑल दो सर्वेलेंस एंड एवरीथिंग। सो दोज डेज इट वाज अ वेरी वेल कैलकुलेटेड थिंग, एंड ओनली द आर्मी कमांडर देयर हु वाज कमांडिंग दैट रीजन was aware. And then under the leadership of now, now Captain Samant is no more, so he was a commander then, lieutenant commander, and वो leadership में पूरी ट्रेनिंग हुई थी। एंड देन व्हेन द वॉर ब्रोक आउट, उसके पहले कितने तो जहाजे उड़ा दिए इन्होंने, यू नो। अच्छा, मुक्ति बाहिनी हाँ, ने?
या विथ लिम्पेट माइन, छोटे छोटे, बिकॉज उन्होंने क्या किया, चैनल ब्लॉक्स कर दिए। सी चैनल में अगर जहाज नीचे चला जाता है, यू ब्लॉक योर चैनल, so there is no navigation possible So the for other. depth is not that big कि it can Exactly, put it exactly. another ship on top. फिर मर्चेंट शिप्स आने को मना कर दिया बाकी कंट्री का कि सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट, वी डोंट वांट टू ट्रेड विथ यू। तो काफी लोग उसके लिए गए, इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड डिमांडिंग 10 टाइम्स। वो तो जो कॉटन वगैरह का जो ट्रेड होता था सब कुछ ठप कर दिया। सो सीधी लॉजिस्टिकली उन्होंने उनकी लगा दी वहां पे, हाँ and this अच्छे was से। done by our own people. So this was the covert operation. And जो actual operation था 1971, wherein all these ships went विक्रांत के ऊपर से, विक्रांत was there, and then we INS गाजी को हमने PNS गाजी को हमने ये कर दिया। Then 4 of our ships went, पूरा कराची को बर्न कर दिया मिसाइल Too मार many के। people spare on Russia's support during that because Yeah, viewers would because see, hear about see that. the actual 4 ships which went and did the damage, entire thing to Pakistan, that was supposed to be purchased by Pakistan. ठीक है, वो जो Okay, 4 शिप है जो हमको दिया, that was supposed to be purchased by Pakistan earlier. by Russia from Russia. हाँ, from Russia. ठीक है। अच्छा, this we did not know, sir. This is a हाँ new. तो यस, तो वो उनको, बट बिकॉज ऑफ दैट स्पीड एंड अदर रेस्ट्रिक्शन जो होता है ना, somehow they didn't see 65 and all. Pakistan Navy was better equipped than Indian Navy So, but I believe sir 65 में। USSR की जो relationship उस time तो अच्छी नहीं थी पाकिस्तान के साथ. Even then they were selling arms and Yes, ships. through some this thing they were supposed to get these 4 ships, अच्छा, है ना। okay. तो फिर बाद में जब इंडियन के हमारे पास आया, तो हमने जुगाड़ बोलते हैं ना, जुगाड़ करके हमने वो उसकी जो हमें जो रिक्वायरमेंट थी वैसे टैप तो किया modify उसमें कर से, लिया. अच्छा. मॉडिफाई करके एंड ऑल and 65 and all. Again, I'm saying that Pakistan Navy was stronger than us. They It had was cheaper than submarines. us. Yeah, 65 में, because हमारी पॉलिसी वगैरह तभी ना इतना स्ट्रांग नहीं बनी थी इसके लिए। डिफेंस पे इतना बजट एलोकेट यस, नहीं किया तो जाता था. 65 के बाद जब ये सब हुआ, दैट इज द टाइम व्हेन द बजट सॉ allocation of funds to defense. 65 तक if you see जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट एंड ऑल, यू विल बी सरप्राइज कि armed forces is only for defense, it is not for armed forces. Very very surprising statements. No 60, offense, only defense. yeah, and 65 से they started thinking कि भैया मामला अलग है करके। राम लाला. सर एंड तो उस टाइम सर मतलब हाउ डिड रशिया हेल्प अस सर? रशिया हमारे साथ कैसे खड़ा था सर? तो आप. रशिया was in terms of one is to equipments, various vessels. And because even when I was in Navy, lot of things used to come from अच्छा. even the last of जो एडमिरल गॉशकॉव बोल के जो जहाज हमने, आई एम श्योर कि हम्म. वो भी रशिया से। सो रशिया वाज वेरी वेरी स्ट्रांग अलाई ऑफ इंडिया। वी हैड अ वेरी सॉलिड रिलेशनशिप विद टेक्नोलॉजी से लेके एवरीथिंग। एंड दे हैड आल्सो सेड इवेंचुअली अगर कुछ हुआ, इफ वी हैड टू साइड समवन, वी विल बी देयर फॉर यू। करेक्ट. सो वो ये लेके वी अटैक पाकिस्तान यहाँ पे, एंड कोवर्ट ऑपरेशन उन्होंने ऑलरेडी ये कर दिया था। हम्म. एंड यू विल बी सरप्राइज कि ना, जो वेयर करंटली वेयर यू आर कलकत्ता में अपना जीआरएससी वगैरह से, दे हाँ. विद 3 चैनल शिप्स, जो चैनल शिप्स होते हैं जो चैनल में ही प्लाई करते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, वो तीनों को इट वाज कन्वर्टेड टू अ वॉरशिप। ओके, ओके. हाँ, इट वाज कन्वर्टेड टू अ वॉरशिप, और गन विन माउंट कर चैनल दिया शिप्स उसमें। मतलब मर्चेंट शिप्स होते हैं कि वाटर मर्चेंट चैनल? शिप्स, मर्चेंट शिप जो अच्छा. है ना, छोटे नॉर्मल नेवी. हाँ. मिड साइज मिड टनेज के जो मर्चेंट शिप्स होते हैं, उनको फिर वो गन वगैरह, एक मिनट, हाँ, श्योर जस्ट सर, गिव मी। श्योर सर, प्लीज प्लीज. उनपे गन वगैरह लगा के, सो दे वेर मॉडिफाइड सो जब जब वो चैनल में जब जा रहा था, तो पाकिस्तानी वे नॉट नोइंग कि ये वॉरशिप है करके, दे ऑलवेज थॉट इट वाज अ मर्चेंट शिप। एंड दैट इज हाउ इतना सारा स्ट्रेटेजी बनाया था। एंड यू शुड रीड दैट बुक कॉल्ड ऑपरेशन एक्स। गूज बम्स, मैं बोला यार नेवी में मैं इतने साल रह के आई वाज नॉट नोइंग दिस।
I'm only since Yes, I I'm was research. because we try to be on the top of these subjects, but ये मुझे नहीं पता था सर हाँ, with तो little मुझे भी आई background. वाज सो सरप्राइज, मैं बोला मैं तो एकेडमी से पूरा नेवल हिस्ट्री वगैरह पढ़ के आया हूँ, बट अमेजिंग बुक ऑपरेशन एक्स बोल के, फ्रॉम देयर आई केम टू नो कि यू नो वो वो एक अलग मूवी जैसा है पूरा। यहाँ पनवेल, आईएनएस पनवेल बोल के शिप, देयर वाज अ शिप आईएनएस पनवेल, जिसपे कैप्टन सामंत वाज देयर। इट वाज नॉट ओनली लिमिटेड टू कोवर्ट ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन भी चल रहा था। फिर पाकिस्तानी यू नो द एयरक्राफ्ट, अपना एयरफोर्स का फाइटर प्लेन्स विच वे फ्लाइंग देयर, दे थॉट ये पाकिस्तानी शिप्स है, सो दे बॉम्ब्ड आवर ओन शिप्स। Oh, They bombed our own ships because हम लोग, we were not identifying as an Indian ship ना, अच्छा, and this okay. was part of a covert operation. So तो so अपना that जो was एयरक्राफ्ट के उन लोग को unfortunate पता नहीं timing था, पे. उन्होंने ही बॉम्ब कर दिया, और ये शिप अफरा तफरी, पीपल आर, कोई कई लोग मरे, फिर कोई जम मारा, बहुत सारा पूरा तामझाम था उसमें। देन फाइनली लाइक few of our officers were caught by Pakistanis वहाँ पे, उसमें चमन लाल साहब थे and other officers also, but then तब तक जब पाकिस्तान, ये डिस्क्लोज हुआ होगा आई बिलीव आफ्टर 30-40 years आई थिंक हाल या आफ्टर 30-40, अभी अब मेरे को तो अभी जाके पता चला, एंड आई एम श्योर जब ये पब्लिक डोमेन में आया तो दे वुड हैव टेकन परमिशन टू ऑफ पुट कोर्स. दिस इन डोमेन करके, है ना। बट वेरी इंटरेस्टिंग, सो ये पीछे से चलता रहा, वो वहां से चलता रहा, आर्मी एयरफोर्स एवरीवन डिड देयर बिट, दैट्स हाउ बांग्लादेश वाज सेपरेटेड, राइट। So now coming, why I have gave you that inference is because that is how the Navy is. So Navy में हम लोग एक वो स्टेटमेंट मारते हैं कि हमें छेड़ो नहीं, क्योंकि जब जब हम जाते हैं ना, दो दो करके आ जाते हैं, दो आई कंट्री बिलीव बना के आ जाते इंडिया का जितना बड़ा लाइक जितने बड़े बॉर्डर इट्स अ कोस्ट लाइन आई बिलीव द इम्पोर्टेंस ऑफ नेवी फॉर इंडिया इज पैरामाउंट मतलब हैं। वेरी ट्रू। इट इज वेरी पैरामाउंट दो तरफ से हॉस्टाइल कंट्रीज हमारे लेफ्ट में राइट में पूरा का पूरा वाटर बेल्ट है सारे करेक्ट। ट्रेड वहां से होता है आई बिलीव इट्स मतलब नेवी की जो इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए इट इज मच मोर देन लाइक लाइक से पाकिस्तान मतलब हम तीन साइड से पूरे के पूरे वेरी ट्रू। पानी और ये मिल आज का नहीं है, इट हैज बीन हिस्टोरिकली राइट फ्रॉम द चोला डायनास्टी से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से, फिर द कुंजाली मरिक्कर से लेके एवरीवन, सो आवर हिस्ट्री हैज बीन एट सी, and that is why it was important for us to protect that entire thing. That is why even for that matter, जब ब्रिटिश नेवी थी, so they also focused, everyone, all those attack was through sea only, पोर्चुगीज आ गए, सब आ गए। बहुत इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई एम लर्निंग, मुझे मजा भी आ रहा है। एंड देन देयर इज अ अमेजिंग सीनियर ऑफ माइन, सर का, कमोडोर केसनूर बोल के सर, इज अ मरीटाइम हिस्ट्री का, ही वाज द ऑफिसर इन चार्ज। उनका नॉलेज तो अपार है, एकदम अपार, मतलब ही होस्ट दैट फेस्टिवल्स एंड ऑल, मरीटाइम फेस्टिवल्स एंड ऑल, सो आई कीप लर्निंग फ्रॉम हिम अ लॉट, वो तो ही इज अ एनसाइक्लोपीडिया चलता फिरता वैसे। सो ये कंटेक्स्ट था। सो इन 1999 जब व्हेन वी सेड, एडमिरल सुशील कुमार सेड कि भैया वी आर सपोर्टिंग, so what happened was the entire, see, Navy Eastern Fleet, Western Fleet, Southern Fleet. Okay, Western Fleet is in Bombay. So Tino is commanded by a flag officer commanding in chief. 99 में when we declared this कि we are going to be attacking Pakistan or this thing. So पूरा तीनों command came under Western Command. So Western Command का जो admiral was the in charge for the entire fleet. Okay, and there were 36 ships and multiple submarines and marine commandos and the naval aviation, everyone in that region around Karachi, so basically ओखा के आसपास 36 nautical miles है। And then we announced to the world, ऐसे भी नहीं कि हम लोग ये किए करके, it was not at all a covert thing, we told the world we are here and we are going to attack, जिसको जो करना है कर लो। सिर्फ पाकिस्तानी नेवी ने कुछ ऑफेंसिव नहीं करा उस टाइम पाकिस्तानी उन्होंने दे दे उन्होंने ना अंडर एस्टिमेट कर दिया, दे वर अच्छा फोकसिंग मोर ऑन दैट साइड, आर्मी वाले साइड पे, you'll be तो नेवी surprised। क्या करेगी सर मतलब लेकिन हाँ, तो दैट इज वेरी सरप्राइजिंग कि व्हाई दे अंडर एस्टिमेटेड, दे ओनली सेड, दे थॉट कि इंडियन सिर्फ हवा में चिल्लाते रहते हैं करके, एंड दे टोटली अंडर एस्टिमेटेड। तो जब 36 ships were there and submarines were there, and then we said no merchant ship will go inside, no merchant ship will go inside Pakistan, we will attack you करके, जो करना है करो।
and we caught a Korean ship who was supposed to send some missiles के parts वगैरह, some weapons are we arrested a Korean ship. ओके। So, वो भी है. एंड देन फिर यूएसए का भी उसको था, यूएसए को भी वी हैड चैलेंज्ड कि कुछ हो गया. तो आई बिलीव देयर वाज वन ऑफ द यूएसएस फ्लीट का, वन ऑफ देयर एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन द वाटर, सब एम टू सपोर्ट पाकिस्तान. एंड एट दैट टाइम सर वी वर ऑलरेडी अ न्यूक्लियर पावर सर, हमने तो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर करेक्ट. चुकी। करेक्ट. सी सबका डर यही था ना तभी कि दोनों न्यूक्लियर पावर है, सो व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ करेक्ट। दिस इफ इट प्रोलॉन्ग्स. करेक्ट। And then when we blocked everything, we put a strong blockade everywhere. अच्छा, ये And व्हाट वाज दिस डेट? 3 मई को चालू हुई थी वॉर। व्हाट मस्ट हैव बीन द डे जब नेवी वाज फुल्ली, उन्होंने पूरा अप्रोक्सीमेटली so सर क्या this would have been in June, July, जून July, जुलाई? या जून जुलाई के आसपास की है. आई बिलीव सर द वॉर वाज एट इट्स पीक अराउंड 1 और 2 जुलाई, आई बिलीव, जो हमने या सो एंड ऑफ जून से लेके फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई was peak. करेक्ट। हम्म। एंड देन जब जब हमने ब्लॉक कर दिया तो पाकिस्तान रियलाइज्ड कि देयर इज ओनली 6 days of fuels and things left in that country. एंड Logistic. पाकिस्तानी नेवी ने कुछ भी लाइक नहीं, तो पाकिस्तान की नेवी ने एक बहुत अच्छा चीज किया. उन्होंने क्या किया, उनके शिप्स और सबमरीन्स को सबको ये डाल दिया, सिग्नल डाल दिया कि आप लोग कोई बाहर मत जाना करके. एवरीवन इनसाइड द पोर्ट. सो वी वर एवरीवन इनसाइड द साइड पोर्ट. पाकिस्तानी जो वाटर, हम शायद 10-20 नॉटिकल माइल्स होती है ना सर, व्हाट थर्टी इज दैट? सिक्स नॉट 36 36 नॉट नॉटिकल माइल्स, सो वो भी इनसाइड द Yes, we were in the international waters. We didn't इंटरनेशनल। see. ऑर्डर बहुत क्लियर था कि यू विल नॉट क्रॉस एलओसी टाइप्स होता है ना. हाँ जी। तो पाकिस्तान जो वाटर में भी इंटरनेशनल वाटर है, उनके हम्म। टेरिटरी में नहीं जाएंगे. दैट वाज वेरी वेरी क्लियर. हम्म। So you be in international water and build up the pressure. And we did that. We did that. And there are signals. अगर आप एडमिरल सुशील कुमार साहब की बुक में भी पढ़ोगे, पाकिस्तानी नेवी ने सिग्नल भेजे थे उनके सारे जहाज और सबमरीन अंदर आ जाओ करके. So one of the reasons, other than the bravery of our army air force, was this was one of the major reason for them to surrender. To ओके। out of that 5-6 reasons, this was one of the top 2 reasons. अभी क्या हुआ था कि सी मीडिया, दिस वाज द फर्स्ट वॉर जो मीडिया वाज शोइंग ऑल द न्यूज चैनल. बरखा दत्त वाज देयर. सो and many stories of guards, Valor was there. Captain Vikram Batra, Captain Manoj Pandey, many, Anuj, then Sanjay Kumar Saab, then Yogendra Yadav Saab, so many Sir, four sir, I Paramvir was Chakra. here one mentioning one small point. So, like I was, my earlier discussion was with Diksha Devedi. I don't know if you know her, sir. So, I know Diksha's father was he's Major again Devedi. a Kargil hero. Yeah. So, Diksha pointed out once, like a very emotional thing. She told me that there were around 528 veteran martyrs, 547. 547 martyrs, and she said, "How many can you name, Anish?" And so that really hit me hard, sir. Like, and this year we दैट इज really, वाई ना, अनीश, yes, sir. क्या होता है कि वाई आई मेड इट अ पॉइंट कि सौरभ के साथ जो थे, Mhm. बिकॉज इवन इवन आई एम गिल्टी ऑफ दैट. जब हम लोग कोई भी पॉडकास्ट या कहीं पे भी बात करते, वी Mhm. ऑलवेज टॉक अबाउट ऑफिसर्स एंड नोन पीपल. नोन Correct. पीपल जैसे अभी योगेंद्र यादव जी है, संजय कुमार है, दे आर नोन. परमवीर चक्र मिला है. बट ट्रस्ट मी बोलता है ना कि there are so many unknown soldiers, and all the people who get gallantry, they also acknowledge that. See, we will somehow, someone noticed that whaler, someone wrote citation, वो हो गया, they were decorated with that gallantry. But there are so many unknown soldiers who would have just been, कोई सोल्जर सी, व्हेन वी जॉइन द आर्मी नेवी एयरफोर्स, हम वो इससे करते ही नहीं है कि यार कोई नोटिस करे और मुझे गैलेंट्री अवार्ड दे दे. नथिंग. Mhm. ऐसे नहीं होता है. बिकॉज एवरीवन वांट्स टू, यू आर देयर, यू आर वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, यू आर प्रोटेक्टिंग योर, यू हैव, आपने वो कसम खाई है करके. हाँ जी। बट द सैड पार्ट यही है यार कि सब लोग भूल जाते हैं. सब लोग भूल जाते हैं. अदर डे ऑल्सो आई ट्राइड, when 21st March was the Martyr Day or the Balidan Divas for Major Mohit Sharma. Okay. Mohit is couple of 2 course junior to me. So all of us only, full respect to Mohit. He is a national hero. मोहित के साथ उस दिन 4 लोग और had fell in the line of duty. कितने लोग को मालूम था? नहीं मालूम था. तो इन माई पोस्ट आई हैड एक्नॉलेज कि भैया ये 4 लोग भी थे.
there is a Kirti Chakra, there is a Shaurya Chakra, there is two Sena medals also, you know. Mohit was decorated with Ashok Chakra. Rest all four of them were, you know, ये. So yes, क्या होता है कि मीडिया न्यूज और इसमें और ये बहुत लोग अननोन रह जाते हैं, बहुत लोग अननोन रहते हैं. सो या सो ऑल ऑफ अस विल ट्राई. दैट इज माय एंडेवर नेक्स्ट 2 years टू गिव दैट ड्यू टू एवरीवन, जो जो पॉसिबल है, whomever, you know. There's this beautiful site called Honor Point. Honor Point बोल के, it is run by a Air Force veteran. Sir is trying to, you know, get that thing, and उन्होंने वहाँ लिखा भी है, all these people, all these soldiers who were martyred with Mohit as well as Kargil में, वो बोलते हैं, वो नाम देते हैं, सर्विस नंबर भी देते हैं, and then he request also कि if any one of you know anything about more about them, please let me know. You know, I will update on my this thing as a tribute and let a lot of people know about them. And thanks to authors like Shiv Arur and all, जिन्होंने India's Fearless three parts बनाए, and many other few authors like Rachna Bisht madam है, then Lieutenant General Satish Dua sir है, then Penguin का एक किताब आया था where you know there were stories. At least some stories are coming out, you know. Some नहीं तो That किसी, the thing, people sir. only remember officers का contribution, लेकिन No, वैसे sir, नहीं है I ना. think that this year, like we are as a brand, and we'll take your help, and we are taking a resolute to highlight every of that 547% through our. Exactly. Sir, because like Kargil collection, sir, this is not a money making stint for us. We donate the proceeds to Kargil War Memorial, जिस पे हम हर साल हम donate करते हैं. And this साल one of the major goals is to highlight that. And एक audience, sir, today आज World War को ना it was a bad event. What there is no doubt कि आज World War One, World War Two, 1965, सब 65, आप जो भी साल की जंग बोलो, war is never good. But we should know about our achievements, about our sacrifices. हमारे देशवासियों को वो पता होना चाहिए. Sir, like for them to understand that emotion, sir, I just want you to share, sir, वो vessel पे sir कैसी feeling थी? Officers, how were they feeling, sir? It was a Yeah, war. You were in the so I middle of. was part of a ship out of that 36 P-44 जो अभी हमने, I think we had given it to one of those countries, अभी friendly countries को हमने वो ship Kirpan, INS Kirpan. So I was part of Kirpan. To be very frank, I had gone there for my training. 1 month का sea attachment होता है, you know, 22 years, 22.5 years. So when I was there, पहले नहीं पता था, because मेरे लिए तो sea attachment था, you know. And ऐसे मतलब भी नहीं अगर कि सी पे जा रहे होंगे ओपन सी में हाँ, लाइक. फर्स्ट टाइम ओपन सी में जा रहे हैं, एंड देन यू नो ट्रेडिशन होता है. तो माय ग्रेट कैप्टन कमांडर रवि मलान सर, अभी सर इज नो मोर, ही succumbed to cancer few years back. सॉरी टू uh, so sir was very known as very ferocious commander. You know, he was commanding that entire K class का fleet जो भी थे. ही वाज दैट, 4 शिप थे उनके, उसका सीनियर मोस्ट कैप्टन था. एंड व्हेन आई मेट हिम couple of days later for the breakfast, का एक ट्रेडिशन होता है, न्यू गाय कम एंड मीट हिम फॉर द ब्रेकफास्ट, नेवी का ट्रेडिशन होता है. वाज इट वन ऑन वन कि आप लोग कुछ लोगों और भी वन ऑन लोग थे? वन, वन ऑन वन. It is वाह. between the captain and the officer who joins, because it वाह. is a way of knowing, you know. Like मेरे भी यूनिट बाद में जब डॉकयार्ड और वेयर आई, सो वी सिट विद द ऑफिसर्स, यू नो. जो भी ज्वाइन करता है, वी नो मोर अबाउट हिम, क्या करके आया. सो दैट्स अ पर्सनल टच. So though I was a sub lieutenant and a trainee officer, so but he called, and then discussion हुई, and you know, where are you from and कहाँ से क्या training, how was the academy, all those blah blah blah. And then that is the time he said कि you will be spending good 1 month plus here because of your training and this thing. And you know, we are part of a war called Operation Talwar करके. And तब तक frankly we all knew, academy में भी जब हम थे, सब कोशिश कर रहे थे, we knew. फर्स्ट ब्रीफिंग सर? Sorry. वाज दिस योर फर्स्ट ब्रीफिंग? Yes, that was the first briefing, you know, first briefing. Uh, and see, academy में जब हम थे, या उसके बाद जब सब कुछ चल रहे थे, we knew कि war is going on. We were knowing कि कारगिल में क्या हो रहा है. And we, जब भी कोई used to fell in line of duty, सिग्नल्स आते थे, सब जगह सिग्नल आता था कि टुडे यू नो वी लॉस्ट ये. फिर कैप्टन विक्रम बत्रा का तो हमने टीवी में भी देखा था, पहला वाला, व्हेन ही अच्छा. सेड कि दिल मांगे मोर दिल करके, यू मांगे. नो, आफ्टर द फर्स्ट ईयर. सो ये सारा चल रहा था. तो यू नो, नेक्स्ट डे व्हेन ही टोल्ड कि दैट दिस शिप इज पार्ट ऑफ ऑपरेशन तलवार, तभी भी कुछ सिंक नहीं हुआ. पहला वो, आफ्टर सम टाइम ऐसे रियलाइज हो, तेरी ये तो वॉर है ना करके, गोइंग फॉर अ वॉर, यू नो. एंड the first emotion is fear, to be very frank, because मेरे लिए कैसे था ना, you know,
आई फ्रैंकली एडमिट, मेरे लिए ये था कि टिल दैट टाइम वी हैड नॉट गॉट अ फर्स्ट फुल सैलरी। हमारा अरे स्टाइपेंड चल रहा था एकेडमी के टाइम से, हाँ जी, हाँ जी। अरियर्स अरियर्स बन ही रहा था, बट हाँ पहला फुल सैलरी नहीं था। हाँ। एंड पहला थॉट वो आता है ना कि साला यार पहला फुल सैलरी भी नहीं हुआ, तुम बोल रहे हो वॉर जाओ, है ना। पहला, बिकॉज फॉर मी अनलाइक एनीवन, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज वी कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस। यंग ऑफिसर, पहली कमीशन, आई कैन लाइक वी कैन टोटली अंडरस्टैंड योर 22 माइंडसेट। एंड हाफ, सी। एंड मेरा ये था कि मेरे घर वाले ऊपर आना चाहिए, हाँ बिकॉज जी। आई वॉज गेटिंग सम डिसेंट टू सपोर्ट देम। ऐसे था कि 1-2 साल में वी विल बी अवे फ्रॉम दैट लाइफ टू सम हाँ जी। डिसेंट प्ले। एंड हियर आई वाज लाइक, यार तुम बोल रहे हो वॉर में जाओ टाइप्स ना। बट यूफोरिया अलग था पूरा। व्हेन यू सेटल एंड व्हेन यू रीथिंक अबाउट इट, इट वाज यूफोरिक बिकॉज एवरीवन, कोई भी ऐसा डल मोमेंट मैंने नहीं देखा कि कोई अरे वॉर जा रहे, वॉर जा रहे। हम्म, पीपल वे बिजी थ्रू आउट, पीपल वे बिजी। आप किसी से एज अ ट्रेनी ऑफिसर, इफ यू नीड टू आस्क समवन टू समवन, किसी के पास टाइम नहीं होता। हम्म, तो सब बाद में करके, बिकॉज सी यू, देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्शन स्टेशन, यू आर एक्शन शिप। एक्शन शिप correct, मतलब यू आर कैरिंग फोर, like K class and all, they have 4 live SSMs, surface to surface missile, correct. live missiles आपके कैनिस्टर में है वहां पर, एंड देन अगर 4 लाइव मिसाइल आप लेके रखे हो तो एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड दैट। फुल एक्शन स्टेशन, मतलब एक्शन स्टेशन मतलब हर एक को अपना अपना डेजिग्नेशन जगह दिया होता है शिप में, कि एक्शन स्टेशन बोला तो वेयर आई एम सपोज टू बी इन दैट हम्म, शिप। बिकॉज वॉरशिप्स आर अनलाइक योर मर्चेंट शिप्स, हम्म, वॉरशिप्स इज वेरी क्रैम्ड, बिकॉज हम्म, वहां आपके लग्जरी से ज्यादा इट इज, द स्पेस इज फॉर इक्विपमेंट्स एंड वेपन्स, correct, sir. इट इज नॉट फॉर योर लग्जरी। ओनली हम्म, कैप्टन गेट बिट bigger cabin with a washroom and things inside. Baki, see, we wear white uniform, glamour सब है, but you have to visit a warship to know अंदर कैसे रहते हैं करके, हमने कुछ सबमरीन के विजुअल्स देखे हैं सर, मतलब इट इज जस्ट एग्जैक्टली। प्योर रिस्पेक्ट फॉर अ नेवल। आई बिलीव सर अमंग ऑल द थ्री फोर्सेस जो हमने सुना है, आई माइट बी रॉन्ग, सो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, द लाइफ इन नेवी इज वन ऑफ द टफेस्ट, बिकॉज आप एकदम एलियनेटेड हो अपनी फैमिली से, आप कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते हो उनसे इन मिडल ऑफ द ओशन, आप यू आर लिविंग इन अ वेरी स्मॉल कैप्सूल, आपके पास एकदम बेयर लिमिटेड बिलोंगिंग्स होती है। एंड मतलब सर लाइक it is a very it is a tough life amongst the all three, with या all all of the नहीं, branches. जाने दो, आई वोंट वांट टू मेक अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। See, everyone has their challenges, but yes, if you consider Navy, I would rate the submariners' life as very very tough. हाँ जी। Submariners' life, because that is why they wear that disposable cloth hota hai when they go for sailing. They don't take bath for days and days. वो हम्म। एक डिस्पोजेबल इसमें होता है, दे आर परमिटेड टू कीप बियर्ड एंड ऑल, नहीं तो अदरवाइज नेवी इज अ क्लीन शेवन वन फॉर ऑल ऑफ अस। यस उनको सर। दे आर अलाउड टू ग्रो हेयर एंड एवरीथिंग। देयर लाइफ हम्म। इज टफ, बिकॉज आई हैव बीन टू मेनी सबमरीन्स ड्यूरिंग माय डॉकयार्ड टेन्योर। जब मैं रिपेयर्स में था तो काफी सारे सबमरीन में ऊपर नीचे घूमना, इट इज टफ, इट इज टफ। सो हाँ, कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, तो एक्शन स्टेशन में ऐसे होता है ना कि जहाज का सप्लाई भी चला जाए, अगर हम्म। सप्लाई आपको बंद करना पड़े, हम्म। नॉन एसेंशियल सप्लाईज हम्म। या कुछ ऐसा स्टेट आ गया, यू शुड बी एबल टू, अंधेरे में भी आपको पता होना चाहिए कि आपका एक्शन स्टेशन कहाँ पर है करके। दैट इज अच्छा। द ड्रिल दे प्रैक्टिस, दैट बिकॉज सी, इमेजिन आप सी पे हो, वॉर में हो, एक हम्म। टॉर्पेडो मार गया आपको, आपके जहाज को हम्म। एक टॉर्पेडो मार गया, एंड हम्म। देन you have to be at certain place in that करेक्ट। ship. 1971, we lost Kukri, यस सर। INS Kukri. So Kirpan was the sister ship of Kukri. Then ओ। also and later also, like जब हम लोग गए थे तो कुकरी किरपान दोनों भी थे साथ में। हम्म। So they prepare you. That is why they call it as action station. फायर फाइटिंग एक्सरसाइजेस, एक्शन स्टेशन। फिर अगर आप ओखा जाके फिर से वापस पोर्ट में, बेस पोर्ट में आते हो, तो टर्न अराउंड एंड ड्रिल्स जो सारे होते हैं, लिबर्टीज वगैरह, तो हार्डली आई रिमेम्बर हार्डली गोइंग होम इन दैट 1 मंथ, बिकॉज वी वेर ऑन एंड ऑफ। तो जो पूरा माहौल था एट ओखा ऑल्सो, बिकॉज एज अ सब लेफ्टिनेंट वी गॉट द चांस ऑफ गोइंग टू ब्रिज। ब्रिज जो होता है ऊपर हाँ जहाज जो। में, हाँ जो। तो क्या एक्शन चल रहा है अंधेरे में, पिद्दू सा लाइट है, एंड देन हम्म। यू नो थ्रू आउट द शिप यू आर हियरिंग कन्वर्सेशन। हमारे लिए तो नया नया था, फर्स्ट शिप था, तो वार्डरूम जो होता है मेस ऑफिसर, सो हम्म। के क्लास का जो वार्डरूम था दैट वाज वेरी स्मॉल।
ऑफिसर्स मेस जो थे बहुत छोटा था, बिकॉज हम्म। यू हैड लिमिटेड बंक्स इन दिस. जब हम लोग इनिशियल, तो हमको बंक्स भी नहीं थे फ्रैंकली स्पीकिंग, सो वी यूज्ड टू स्लीप इन अ कंपार्टमेंट कॉल्ड पीएलसीटी फॉर ओके। few days. And puking, sea sickness, monsoon का time था, sea states are bad. It was June, July. So imagine the sea state, western region में मुंबई गुजरात एंड ऑल, शिप ऊपर नीचे जा रहा है. एंड मेरे लिए तो सी सिकनेस, तभी पता चला सी सिकनेस है. यू आर वॉमिटिंग, यू आर प्यूकिंग, ऑल दोस थिंग विच इज हैपनिंग, वो सारा. एंड देन यू आर हियरिंग ऑल दिस थिंग्स, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड ऐसा ये होगा, वैसा ये होगा. देयर इज सिग्नल कम्युनिकेशन ऑफिसर, जिसको एससीओ बोलता है. ही इज नाउ अ वाइस एडमिरल, अभी है. आई मेट सर रिसेंटली. तो ही वॉज देयर. तो ऊपर नीचे सब बनते बनते स्टोरी, you could see, you could hear. And I still remember, जिस दिन कैप्टन बत्रा, we lost कैप्टन बत्रा, that day the signal came, naval signal आया था wardroom में, where we were sitting. And then it was a very gloomy moment for us, when a colleague or a fellow soldier. So yeah, overall, for me, like at that age, 22 years, 22 and a half years, it was very, very, मतलब होता है ना कि चल क्या रहा है करके. आई वॉज इन दैट मोमेंट, चल क्या रहा है करके, सी नेवी का जो एक्टिवली जो रोल होता है, वी कांट गो विद अ गन, एंड अनलाइक करेक्ट। आर्मी वेयर द इंडिविजुअल हम्म। रोल्स आर देयर. Navy is all about carrying your missiles, carrying your AK-6 guns, mounted guns है. And in case ऐसा scenario आ गया where you have to have a hand-to-hand combat and things like that, Navy के भी आर्मरी में SLRs वगैरह होते हैं, So अच्छा। we are trained for guns and everything. We are trained, but जितना आर्मी यूज करता है, we may not use, करेक्ट। we may not get opportunity, but we are trained. हमारी भी जो गनरी की क्लासेस होती है फॉर ऑफिसर्स, पिस्टल की क्लासेस होती है, शिफ्टेड हम्म। क्लासेस होती थी. तो उसके जो हमारी आर्मरी थी, आर्मरी वाज फुल ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ हैंड टू हैंड जो भी Yes, होता sir. है. That I think is really insightful, sir. And coming to July, so 26th of July, Vijay Diwas. Sir, do you remember that day, sir? वो डे कैसा था नेवी में, कैसा माहौल था? Like, was it a celebratory माहौल? How the news कैसे मिली आप लोगों की खत्म हो? हमारे सो 26 जुलाई आई रिमेम्बर कि देयर वाज सिग्नल्स फ्लोटिंग. सो नेवी में सिग्नल्स के थ्रू आता है सर, हाँ हाँ। नैवटेक्स जिसको तभी बोलते थे, सिग्नल के थ्रू यूनिट में आया. एंड देयर वाज दैट हैप्पी मोमेंट होता है ना. तो इट हाँ। वाज अ मिक्स ऑफ, बिकॉज वी हैड लॉस्ट पीपल, लाइक 547 पीपल. But yes, it was celebratory moment because 28 years later, again the same result. Pakistan was beaten black and blue again. Yes. So so फौज में वो माहौल मस्त होता है, and then subsequent, only thanks to social media of late, 5 6 7 8 साल इंटरनेट आने के बाद, at least everything is reviving. Lot of people telling the stories about Kargil, lot of people, and then 2019 people like us coming and telling कि भैया नेवी भी था, नेवी का भी रोल है करके, and बिकॉज that's the beauty, that's the beauty which एलओसी we have seen. कारगिल इन्होंने उस पे नेवी पे वेरी अमेजिंग मूवीज है, पर नेवी पे उतना फोकस नहीं किया उन्होंने, आई थिंक सो, इसलिए थोड़ा सा रिटोरिक जितना इम्पोर्टेंस था उसका. सो सर, तो आप वापस कब आए थे बेस पे, सर, आफ्टर दैट, आफ्टर द Uh, डिप्लॉयमेंट? I think so. 1 month was over, and then towards the end of July, once this was over, I deboarded because मुझे मेरा तो ट्रेनिंग के लिए आया था. So that during that period जितना भी था उतना, I was there, and once that was ऐसी over. ट्रेनिंग तो किसी को ना मिली होगी सर, आई थिंक द ट्रेनिंग दैट यू गॉट. नहीं, in fact that was a great time to learn, यस सर. learn कि क्या होता है करके. So it was more of an attachment, and then I went back to my base again. So training base, I was to report to Jamnagar. So I went to Jamnagar again, and then then I served for 10 years, 10 good years through ye. But frankly speaking, again, I'm why I'm pressing on that is 2019 तक ना बहुत ऐसे कुछ लगा नहीं. जब मेडल आया था, व्हेन आई गॉट दैट विजय स्टार का मेडल हैड कम थ्रू पोस्ट, यू नो गैजेट में आने के बाद पोस्ट में आया था, उसके पीछे लिखा भी है मेरा नाम. सो अच्छा. द स्टार मेडल वॉर का. सो who all can wear a Vijay Star medal is those who were in the active zone, जो भी करेक्ट. एक्टिव जोन में रहा है, कोई भी कैडर का जो भी एक्टिव वॉर एक्टिव जोन में. सो यू आर एंटाइटल टू वेयर. ये नहीं कि मैं गन लेके वहां उतर के मार के आया, नहीं, नथिंग लाइक दैट. सो यू हैव टू बी इन योर एक्टिव जोन. और सपोर्ट रोल में जो भी थे, दे गॉट विजय मेडल. ओके, अच्छा. so we were both in support as well as active, so we are entitled to wear both the medals. वाह We सर. wear both the medals.
एंड 2019 के बाद वो सिंकिंग चालू हुआ, फिर मैं ढूंढा मेरा मेडल, बोला यार सब लोग बातें कर रहे हैं, यू विल बी सरप्राइज, जब मैं पहले पॉडकास्ट वगैरह या कभी आता था, सो पीपल यूज्ड टू वेयर हाउ ही इज वेयरिंग कारगिल वॉर मेडल, नेवी जहाज लेके कैसे पहुंच गया कारगिल में, सो दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, यू नो. Yeah. And I've been asked this question multiple times, that too by very very educated people. ऐसे भी नहीं कि कोई रोड का किसी ने पूछा, sir, how did ship went to Kargil? Then they have to be told कि भाई it was Operation Vijay. It was not Kargil war. You know, Kargil war was a, वो बोलते हैं ना कि famous वाला word. Hmm. Otherwise, it was always Operation Vijay, Safed Sagar and Talwar. You know, that is how we identify. So yeah, so ये journey थी, a very beautiful journey. And then No, sir, thank you so much for sharing that, sir. Just one or two last thoughts that आप हमारे viewers को छोड़ना चाहते हो of सब वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते for the martyrs, but what like in terms of paying respect, sir, what would be the last thoughts that you would want to leave us with today, sir, about the whole topic that we have discussed? correct. So see, you know, you'll be surprised to know कि ठीक है, Army, Navy, Air Force take cares of their people, take care of people who who are martyred in, who fell in line in the war. That's the correct word. A pension होता है, सब होता है, but see, loss is a loss. You know, वो family जिसका loss, because I had met Anuj's mother and so many people. वो जो घाव है ना बहुत गहरा है, वो Hmm. दुनिया के लिए, सन में बी अ वॉर हीरो, जिसके Hmm. इवन फॉर कैप्टन बत्रा की मदर जस्ट पास्ड अवे फ्यू डेज बैक. Hmm. आई हैड नोन वन ऑफ दिस हु हैड फेल इन लाइन ऑफ ड्यूटी. तो जब उनसे बात हो रही थी, वो लेडी से, तो मैम वो सेइंग कि हम लोग भूलना चाहते हैं सब, बट ना एवरी ईयर लोग याद दिलाते हैं करके, सो वी विल हैव टू गो थ्रू दैट. See, our son has died a hero at fell in line. वो अमर रहेगा at the age of 25, 26 जो भी है. But as a parent, somewhere we want to forget about it. But कोई भूलने ही नहीं देता है करके. So that pain remains eternal करके, you know. Oh, and many a time, especially, see, war heroes are war heroes, जो भी हो गया. But there are people who are fighting terrorists, who are, falling in line and all. बहुत सारे promises meet नहीं होते हैं, बहुत सारे जो announce Hmm. करके निकल जाते हैं ना. See, nobody wants ऐसे पैसा वैसा किसी को नहीं चाहिए, but then some promises which are made need to be kept, because financially क्या होता है ना, they go into a very deep trouble, very Hmm. deep trouble. बच्चों का education, ये वो, and imagine a girl who's just married and एक Hmm. छोटू सा बच्चा है, and then the husband fell in line of duty. Hmm. Imagine the trauma they would be undergoing, and lot of things. And surprisingly, there is another category of, uh, uh, this फौजीज जो वॉर कैजुअलिटी नहीं होती है, और जो ये टेररिस्ट एक्शन कैजुअलिटी नहीं होते. देयर इज अनदर कैटेगरी जो इन लाइन ऑफ ड्यूटी में जिसका डेथ हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये तो कोई कैटेगरी आता ही नहीं है. फौज भी हाथ उठा लेता है for them. That's the sad part. That is why Colonel Bamboo Shankar sir वगैरह जो है, they are fighting for that. They have formed an organization. So ये सारी चीजें. So my only request is कि best possible way, give them the desired respect, no doubt. जो फौजी है, वेटरन्स है, ये है. लोग बोलते हैं कि पैसा तो मिलता है उनको, सैलरी मिलती है, उसमें क्या है. नहीं भैया, इट्स नॉट अबाउट दैट. एंड देन जो फैमिलीज है, आपको अगर कहीं से भी अगर पता चले कि समवन Hmm. इज इन नीड एंड इफ यू वांट टू हेल्प देम, please do help them. There are many organizations who are doing that, and I would only say कि reach reach them through correct people and correct connects, Correct. because वहां पे भी बहुत फेक लोग आ जाते हैं. वहाँ पे भी बहुत सारी वेरी सर. इजी मनी ना. वेरी मतलब इजी. इंडिया में, हमारे कंट्री में, हम लोग इमोशन के नाम पे किसी को भी चूना लगा सकते हैं. करेक्ट सर. देर आर अपॉर्चुनिस्ट जो वहां रुके हुए होते हैं कि चलो मैं आपको कनेक्ट करा देता हूँ, वो अपना कट ले लेगा. ऐसे भी बहुत सारे किस्से हैं. इट्स नॉट दैट इजी, जित सब कुछ हंकी डोरी नहीं है. बट काफी रेस्पेक्ट मिलता है अभी कंपेयर टू, वी आर गेटिंग अवेयर, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल माय विथ रिलेटेड टू वर्क, यूरोप या कहीं पे भी, एशिया में भी कहीं, सो मेनी अदर कंट्रीज, you should see the respect they give to their veterans and those who have served even for 2 years, 3 years. और मुझे हमेशा लगता था यार साला, हमारे यहाँ क्यों नहीं, जबकि हमारी हिस्ट्री इतनी तगड़ी है. We had fought wars, 4, 5 सर आप wars. समझिए,
एक हम मुझे एक चीज कितनी अखरती है टुडे, हम लाइक आई सी पीपल जो मॉल्स में चल रहे हैं, उन्होंने एक पहना हुआ है यूएस आर्मी लिखा हुआ अमेरिकन झंडा उनके स्लीव में लगा हुआ है। एग्जैक्टली। आप क्यों पहन रहे हो? आप क्या मतलब अमेरिकन हो? मतलब व्हाट हैज दैट मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अमेरिका सटिल द लेट 2000s वो हमारे अगेंस्ट थी पूरी, मतलब अर्ली 2000s तक इट वाज कंप्लीटली अगेंस्ट, एंड आप यू आर वेयरिंग उसकी क्लोथ्स, व्हाई? वो एग्जैक्टली। इंडिया से वो कपड़ा उधर बनकर गया, आप उस कंपनी से उस ब्रांड में 3 2,500 रुपए देके आप वो चीज खरीद रहे हो। सीरियसली सीरियसली। And sir, what that was one of the core inspirations for me to start Aero Armor, sir, because it should be a brand जो आप और मैं पहन सके, sir. Like it should we should be able to showcase कि क्या वेरी पैशन today नहीं today नहीं, अगर एंड yes sir. I'm really happy because not just a brand, you had made your identity. एंड जब भी वो एड या कहीं आता है ऐसे दिखता है ना, आई रियली फील प्राउड कि फाइनली सी मेरे मन में जब से मैं फौज में था, फौज छोड़ने के बाद, आई ऑलवेज यूज टू हैव दैट प्राइड इन वेयरिंग समथिंग रिलेटेड टू आर्म फोर्सेस, हम्म। and that combined with amazing design is something, it's a style statement to me. हाँ जी sir. If I wear, it's a style statement, like जो भी whatever you had sent me कारगिल और ये, I mean I really wear with a pride कि okay ये है करके वो- So we are going to send you far more products, sir. And अरे वो तो है, you are on always that note, sir, I would once again thank you for coming on this podcast, and we hopefully sir हम आगे जाके और ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। पक्का And पक्का Anish. अब I would अब have we had thought of making it a studio podcast, but unfortunately I understand, wishing you to get well soon and go no kicking issues. I'll butt. just stop the recordings and then we can just discuss once again.